Okay, so we are starting this paper. This is October, November 2020, paper 222210/22 is the syllabus code. Let's start this paper and let's take a quick recap of what we have already discussed. The first question of your section B is about subroutines. Tick one box to identify if the statements about subroutines are either true or either false. So we have already discussed into our class that what are subroutines. Subroutines are basically a self-contained section of your program that completes a specific task. And there are two types of subroutines. Those two types of subroutines are either function or either procedure. And we have also discussed in our last class regarding the functions and procedures in depth. So the first part says that a subroutine is called from within a program. Yes, functions and procedures are called from within the program and they can be called again and again if needed. So this one goes for true. A subroutine is not a complete program. Yes, it is certainly not a complete program. It is a part of a program. A subroutine is a self-contained piece of code. Yes, it's a true. A subroutine must return a value to the code from which it was called. Yes, false. A subroutine may or may not return a value because we have functions and procedures that can differentiate between them. The question number 3 says that there is a pseudocode algorithm that is used as a validation check. Now, when it comes to validation check, I have a number of validation checks that I use to make sure that if the data that I am entering is either correct or not. Like, first of all, it goes like print input a number from 1 to 500, then repeat, then input number. If number is greater than 1 or if number is greater than 5,000, then print invalid number, please try again until number is greater than equals to 1 and number is greater than equals to 5,000. Print number within current range. Now, I need to identify three types of test data and I need to give an example for that. So, the first data that I can give could be no, रेंज चेक नहीं लगाएंगे यहाँ पर. रेंज चेक हम जब लगाते हैं जब वो हमसे टेस्ट पूछता है. यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा के अंदर बेटा वो आएगा एक्सट्रीम, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एरोनस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक कोई भी एक्सट्रीम डेटा है. इसका टेस्ट डेटा क्या होगा? फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 5,000 ऐड किया. क्योंकि 5,000 इसकी लिमिट है. तो इसका रीजन क्या है? दिस विल बी एक्सेप्टेड और टू चेक इट इज एक्सेप्टेड. सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट डेटा मेरे पास कौन सा है? मैं कह सकता हूँ नॉर्मल डेटा. नॉर्मल डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा? फॉर एग्जांपल किसी ने 300, दो आई कैन ऑल्सो राइट दैट टू चेक इट इज एक्सेप्टेड. फिर मेरे पास थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट डेटा कौन सा है? ये आपके पास यस, एबनॉर्मल. और एबनॉर्मल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर दूंगा. लाइक वो इस टाइप की वैल्यू होगी तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी. तो टाइप ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होती है जिसमें नॉर्मल, एबनॉर्मल और एक्सट्रीम डेटा. 5,000 is not in range. It is smaller than 5,000. So does 5,000 count in extreme data? बेटा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट है, रिपीट है, ये रिपीट एंटल का लूप लगा हुआ है. इनपुट नंबर, अगर नंबर आपका 1 से कम हो या 5,000 से कम हो तो आप प्रिंट करा दो इनवैलिड नंबर. और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक नंबर या तो 1 हो या 1 से इक्वल टू. नंबर या तो 5,000 हो या 5,000 से कम. तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है? 5,000. जो मेरे पास एक्सट्रीम डाटा आएगा. एक्सट्रीम डाटा होता है जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे आता है, जो बिल्कुल बाउंड्री के, जो डाटा भी कहते हैं, जो बिल्कुल कॉर्नर का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड्स हैं आपके ए से लेके यू तक. इसमें आपका एक्सट्रीम डाटा क्या है? या तो यू ग्रेड होगा जो सबसे ज्यादा बाउंड्री पर है. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा है. इज इट क्लियर?
इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि देयर इज दिस सूडो कोड एल्गोरिथम दैट अलाउ 5000 numbers to be entered and stored in an array called number. For count 1 to 5000 input number count next count. Extend and rewrite the algorithm using pseudocode to also count and output how many of the numbers are stored in the array are greater than 500 using variable higher. Only output higher ones with an appropriate message. अच्छा जी, मेरे पास ये रहा कोड। इस कोड को दोबारा से लिख रहे हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं। Output how many numbers are stored in the array greater than 500 using the variable higher. Only output higher, तो using the variable higher लिखा हुआ है, तो पहले higher लिया और higher को यहाँ पे कर दिया 0। उसके बाद स्टार्ट कराया मैंने for count 1 से लेके 5000 तक। इनपुट कराया नंबर काउंट के साथ। अगर मेरा नंबर जो काउंट के एरे में स्टोर है वो ग्रेटर देन है 500 से, तो क्या कर दो, हायर इज इक्वल्स टू हायर +1 और एंड इफ के बाद क्या कर दो, नेक्स्ट काउंट। और फिर आप यहाँ पर आउटपुट भी लगा सकते हो कि देयर आर हायर की जो भी वैल्यू आती है, वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पे एक चीज ये कि ये पूरा पार्ट जो है ये मेरा कमेंट है, मतलब ये तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू कॉल कराई है। जो आपके पास ये वाला पार्ट है हायर, यहाँ पे आपके वेरिएबल की वैल्यू कॉल होगी। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो वैल्यू मतलब 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पे भी इनिशियलाइज करा दिया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेरीज और कंफ्यूजन? सर अगर हायर ना होता तो, बेटा हायर ना होता तो आप आउटपुट क्या कराते? आउटपुट तो आप हायर ही करा रहे हो ना। हायर नहीं होता तो लोअर होता। सवाल में लिखा हुआ है हायर, या ये सवाल कंप्लीटली चेंज भी हो सकता है अगर पेपर में आ गया कि हायर और लोअर दोनों निकालो। अगर दोनों आ गए तो फिर आप लोग वो वाली स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी कि हाईएस्ट वैल्यू को क्या कर देंगे, सबसे कम, और लोएस्ट वैल्यू को क्या कर देंगे, सबसे ज्यादा। फिर ये भी समझाया था वो हम क्यों करते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक वैल्यू निकालनी है तो बस सिंपल वेरिएबल देके आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो। बेटा शुड आई मूव ऑन, आगे चलें? सर व्हाट इफ हाईएस्ट नंबर की वैल्यू आउटपुट करानी है? बेटा हाईएस्ट नंबर की वैल्यू आउटपुट कराने के लिए आपको फिर सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा और नंबर्स के साथ फिर उस वैल्यू को कंपेयर कराना पड़ेगा किसी भी एक हाईएस्ट वैल्यू से। कि फॉर एग्जांपल अगर वो वैल्यू इससे ज़्यादा ग्रेटर देन है तो आप उसको प्रिंट कर दें। अगर पूरे प्रोग्राम में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप वो यूज़ करोगे, मैक्सिमम और मिनिमम वाली स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वाली स्ट्रेटेजी में जो मैंने क्लास में समझाया था, आपके टेबल के अंदर सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसमें से आप अपनी हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल है कि सर अगर हाईएस्ट वैल्यू इटसेल्फ निकालनी हो तो फिर इसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि
अगर मेरी इस वाली लाइन को मैं चेंज कर सकता हूँ कि अगर वैल्यू, और यहाँ पे कोई और पैरामीटर दे सकता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू इससे ज़्यादा हाईएस्ट है तो फिर डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दो। या एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज को एरे के अंदर स्टोर कराओ, एरे के अंदर स्टोर कराने के बाद हाईएस्ट ले लो। इसके बाद मेरे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है फ्लो चार्ट का। तो चलो फ्लो चार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक सूडो कोड है, वो रिप्रेजेंट करा रहा है एक एल्गोरिथम को, और रिपीट अंटिल का लूप लगा हुआ है। रिपीट अंटिल के लूप के बाद फ्लैग है मेरा 0, ये लो फ्लैग कर दिया 0। काउंट है मेरा 0 से 3, तो 0 कर दिया 0 से 3। अगर मेरा नंबर काउंट ग्रेटर देन है नंबर काउंट +1 से। अच्छा जी, अगर मेरा जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन है नंबर +1 से, ये लो यहाँ से ले लो, नंबर ग्रेटर देन है नंबर +1 से। अगर 45 ग्रेटर देन है 56 से, ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं? हाँ हो रही है, ये ज़्यादा ग्रेटर है। तो नंबर काउंट को क्या करो, नंबर काउंट को करा दो स्टोर के अंदर स्टोर, और नंबर काउंट अभी क्या है 45, तो यहाँ पे मेरे स्टोर के अंदर आ गया 45। फिर नंबर काउंट के अंदर नंबर काउंट +1 करेंगे हम, और वेट नंबर काउंट के अंदर जो लास्ट वैल्यू है इसके अंदर स्टोर होगा वो वैल्यू जो नंबर काउंट +1 के अंदर है। नंबर काउंट +1 के अंदर 56 है, तो नंबर काउंट के अंदर यहाँ पे आ गई मेरी वैल्यू 56 की। और फिर नंबर काउंट +1 की वैल्यू मैं वापस से स्टोर करा दूंगा स्टोर में। 45 56, ओके, एंड इफ हो गया ठीक है। 0 0 45 56, इसके बाद अब काउंट मेरा चलेगा 1। अब जो भी मेरी वैल्यू यहाँ पे काउंट 1 के ऊपर है, अब काउंट 1 पे कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास? मेरे पास आ रही है 56, और इसका काउंट +1 क्या है? अगेन मेरे पास यही वैल्यू आ रही है 1 के ऊपर। अब पहला काउंटर चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास मैं क्या वैल्यू स्टोर करा दूंगा, नंबर काउंट की वैल्यू अगेन इसमें स्टोर करा देंगे, तो 56 के साथ यहाँ पे हो जाएगा 45। अच्छा यहाँ पे ये एक कंप्लीट हो गया, अब मेरा काउंट 1 शुरू हो रहा है। फॉर काउंट 1 2 3, इफ द नंबर काउंट 56 इज ग्रेटर देन 30, ये वैल्यू 30 से ग्रेटर देन है, नहीं है? यहाँ पे 1 के ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं चलेगा। फिर आ जाओ 2 के ऊपर। 2 के ऊपर आते हैं, तो आपके पास ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, क्या मेरे पास 30 ग्रेटर देन है 12 से? ये भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। फिर मैं आपके पास आऊँगा 3 के ऊपर। 3 के ऊपर मैं आया तो यहाँ पे बोलेगा कि इस 12 ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। तो बेटा जो ये वैल्यू है ये मैं किस में रख दूंगा, स्टोर के अंदर। तो 15 की वैल्यू मेरे पास सॉरी 12 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद जब हम इसको आगे चलाएंगे, तो मेरे पास जो नंबर 3 पे वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी 15 एंड 12, तो ये पूरा चलेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 चला दिया,
अब जो अगला काउंट है अंटिल फ्लैग इज जीरो, उसके बाद आपके पास लगेगा यहाँ पे जीरो जीरो। लेकिन जीरो जीरो के बाद दोबारा से यहाँ पे देखो ये 1 2 3 दोबारा से चलेगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे ब्लैंक गया है, तो अगेन 1 2 3 चलाएंगे, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये एक दफ़ा आप लोगों को अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे पता है इसमें शायद समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने का एक फिर से इसको मैं ड्राई रन का तरीका बता देता हूँ, तुम लोग गौर से देख लो कि मेरी क्लास के बाद इसको घर पे सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले देखो फ्लैग जीरो लगा दिया, काउंट जीरो लगा दिया, सबसे पहले चलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर काउंट इज ग्रेटर देन नंबर काउंट प्लस वन। अगर बबल शॉट तुम लोगों को याद हो तो नंबर काउंट सबसे पहले कौन सा है जब काउंट जीरो चल रहा है, नंबर काउंट है 0 45, और नंबर काउंट 0 + 1 1 हो गया 56। तो अगर 45 ग्रेटर देन है 56 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर 45 ग्रेटर देन है 56 है, हाँ ग्रेटर है, तो क्या करो, तो स्टोर कर दो वैल्यू किसकी, जो नंबर काउंट के अंदर है। और नंबर काउंट के अंदर पहली वैल्यू क्या थी 45, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी। यहाँ तक मेरा काम हो गया। तो इसके बाद कहता है कि जो वैल्यू तुम्हारे नंबर काउंट प्लस वन के अंदर है, नंबर काउंट प्लस वन के अंदर मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है, वो मेरी क्या है बेटा 56। 56 को किस पे स्टोर करा दोगे तुम, अपनी उस वैल्यू में जो तुम्हारी नंबर काउंट पहले थी जिसमें 45 था। तो 56 की वैल्यू आ गई आपके पास नंबर काउंट के अंदर। तो नंबर काउंट के अंदर आ गई 56 की वैल्यू। उसके बाद कह रहा है कि नंबर काउंट प्लस वन के अंदर स्टोर की वैल्यू भी ऐड करा दो इसमें। तो स्टोर की वैल्यू मेरे पास लास्ट क्या थी, वो थी मेरे पास ये रही 45। और 45 हम किस में करा देंगे, काउंट प्लस वन में, जिसमें मेरे पास अभी 56 था। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये इट्स लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बबल सॉर्ट। ये पूरा काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो अगर आप लोग इसको ब्रेक कर करके देखोगे तो हो जाएगा। इसके ड्राई रन में किसी का कोई कंफ्यूजन, सिर्फ क्लास देखने से काम नहीं होगा, क्लास देखने के बाद ये पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर काम बनेगा। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का पर्पस क्या है बेटा। ये एल्गोरिथम मुझे बबल सॉर्ट जैसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि द एल्गोरिथम सॉर्ट्स एंड ऑर्डर नंबर्स इनटू डिसेंडिंग और ascending order from the largest to smallest। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ फ्लो चार्ट सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल क्या होता है फ्लो चार्ट में, ये इस तरीके से होता है। डिसीजन मेकिंग का क्या होता है बेटा, सिलेक्शन और डायमंड होता है ये। इसके बाद डेटाबेस का सवाल है, द टेबल ऑडियो पार्ट स्टोर्स द पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन कॉस्ट क्वांटिटी इन स्टॉक ऑफ द आइटम सोल्ड बाय म्यूजिक शॉप। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल ऑडियो पार्ट। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इसमें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 है। कभी भी इन वैल्यूज से इनको देख के नहीं लिखिएगा, ये वैल्यूज कभी कभार गलत होती हैं, आप कंफ्यूज कर देंगे। आइडेंटिफाई द फील्ड दैट इज मोस्ट सुटेबल टू बी प्राइमरी की एंड गिव अ रीजन। प्राइमरी की कौन सी हो सकती है इसमें, क्वांटिटी देखो रिपीट हो रहा है, कॉस्ट भी रिपीट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन भी रिपीट हो रहा है, लेकिन पार्ट नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पार्ट नंबर आपके पास एक यूनिक आईडी, और ये यूनिक क्यों है, क्योंकि भाई 2 मार्क का है, तो थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे कि द डेटा स्टोर्ड इन द फील्ड इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। इसके बाद बेटा सी पार्ट है, सी पार्ट शायद आप लोगों के पेपर में इस तरह ना आए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। कंप्लीट द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रिड टू शो द आइटम्स वेयर द क्वांटिटी इन स्टॉक इज फ्यूअर देन 10।
शो द फील्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अच्छा, टू शो वेयर द क्वांटिटी इन स्टॉक इज फ्यूअर। तो फील्ड मुझे कौन कौन सी चाहिए होंगी? फील्ड तो मुझे भाई सारी चाहिए, पार्ट, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट और क्वांटिटी। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट और क्वांटिटी। टेबल कौन सा लूँ मैं? टू शो वेयर द क्वांटिटी इन स्टॉक इज फ्यूअर देन 10। इस टेबल का नाम ये दिया हुआ, ऑडियो पार्ट्स। टेबल तो सेम आएगा, ऑडियो पार्ट्स, ऑडियो पार्ट्स, ऑडियो पार्ट्स, ऑडियो पार्ट्स। कॉस्ट चाहिए फ्यूअर देन 10, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कॉस्ट के साथ यहाँ पे क्या लिख दिया? डिसेंडिंग में। शो तो सब करेंगे क्योंकि ये भी चाहिए। और लास्ट का लिखा है जिसकी क्वांटिटी जो है वो आपके पास लेस देन 10 है, तो क्राइटेरिया में लिख दिया क्वांटिटी दैट इज लेस देन 10। सो वी आर डन विद दिस पेपर। लास्ट के 9 मिनट्स हैं, ये पूरा क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करा देता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सवाल के अंदर कहा हुआ है कि एन ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप सेल्स कस्टमाइज्ड पर्सनल कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर सोल्ड इंक्लूड अ बेसिक सेट ऑफ कंपोनेंट यूजिंग $200 एंड एडिशनल आइटम कैन बी एडेड फ्रॉम द टेबल। एक ऑनलाइन कंप्यूटर की शॉप है जिसमें कंप्यूटर पर्सनलाइज कंप्यूटर आइटम्स हैं, उनकी कैटेगरी लिखी हुई, आइटम कोड लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन और प्राइस है। कह रहा है कि एज वेल एज बेसिक सेट ऑफ कंपोनेंट्स एवरी कंप्यूटर मस्ट इंक्लूड वन केस, वन रैम एंड वन मेन हार्ड ड्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर। A computer is supplied with or without operating system. Write a program for online computer shop. Your program must include appropriate prompts. Prompts पता है क्या होते हैं? Prompts मतलब पूछना बंदे से, मतलब फॉर एग्जांपल नेम एंटर करने से पहले प्रिंट कराओ, प्लीज एंटर योर नेम, फिर इनपुट कराओ नेम। एज है, इनपुट करने से पहले प्रॉम्प्ट लो, प्रिंट प्लीज एंटर योर एज, फिर इनपुट लो एज। Error message and other output need to be set out clearly and understandable. All array variable have to identify a meaningful name. इसमें 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, तीनों जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। पहले टास्क के अंदर यूज एरे टू स्टोर आइटम। अच्छा, वो हम टास्क बाद में पढ़ते हैं, पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि ऑल वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अदर आइडेंटिफायर मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम। आइडेंटिफाई वन एरे यू कुड यूज फॉर टास्क वन एंड स्टेट इट्स पर्पस। टास्क वन के लिए बेटा एक एरे कौन सी यूज करेंगे और उसका पर्पस क्या है? टास्क वन के अंदर आपके पास मेंशन हुआ हुआ है कि यूज एरे टू स्टोर द आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। यूज एरे टू स्टोर आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। अलाउ कस्टमर टू चूज दीज थ्री आइटम्स, कैलकुलेट द प्राइस। तो एक एरे जो उसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ, दैट कुड बी सिस्टम प्राइस। और उसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा टू स्टोर द टोटल प्राइस of the system being purchased। फिर है सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई वन वेरिएबल could you could have used for task 2 का वेरिएबल, ordering additional item, extend task 1, allow customer to choose whether to purchase any item from other category, update the price of the computer, store and output additional computers। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन सा आ सकता है? वेरिएबल अलावा whether to purchase any item, if so which items। वेरिएबल के अंदर बेटा आई थिंक वी कैन टेक परचेज एनी आइटम। कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं या आइटम नंबर हम ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कैटेगरी से वो चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कंपोनेंट, और कंपोनेंट का पर्पस क्या होगा? टू अलाउ टू इनपुट अ कंपोनेंट कोड। कंपोनेंट कोड भी ले लो या प्राइस भी ले लो, एक ही बात है। फिर कहता है कि आइडेंटिफाई वन कांस्टेंट यू कुड यूज फॉर टास्क 3।
टास्क 3 पे आओ। टास्क 3 पे कौन सा कॉन्स्टेंट होगा? ऑफरिंग डिस्काउंट, एक्सटेंड टास्क 2, अप्लाई 5% डिस्काउंट, अप्लाई 10% डिस्काउंट, आउटपुट द अमाउंट ऑफ मनी. So I have different types of discount here. So I can name both of them as like offer 5, or I can also name them like offer number 10 क्योंकि इतने परसेंट डिस्काउंट है. और इनका पर्पस क्या लिखूंगा? टू स्टोर द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ 5% डिस्काउंट. और ऑफर 10 में क्या लिख देंगे हम? आप लोग को एक लिखेंगे, मैं तो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ. टू स्टोर द सेकंड ऑप्शन ऑफ 10% डिस्काउंट. तो देखो यहाँ पे आप लोगों का वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ट हो रहा है. अब जो सिनेरियो बेस्ड सवाल मैंने आप लोगों को करवाए हैं उसमें भी आप लोगों को सबसे पहले डिक्लेरेशन करनी होती है, जिसमें आप लोगों के पास आएगा कि आप लोगों का वो कौन सा है, वेरिएबल क्या है क्या नहीं है, वो सब हमें डिक्लेयर करने होंगे. फिर कहता है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ स्टोरिंग प्राइस एज अ रियल डेटा टाइप. प्राइस को जो है वो रियल डेटा टाइप में स्टोर करने का बेनिफिट क्या है? 2 मार्क्स के लिए लिखना है. हम लिख सकते हैं कि रियल डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि रियल डाटा कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस डायरेक्टली, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइस डेटा गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है वो एक चीज. मैं ये भी लिख सकता हूँ, उसको हम यूज कर सकते हैं. और हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी हेल्प से मेरा जो डाटा है वो स्टोर हो सकता है डेसिमल प्लेसेस में. डाटा स्टोर्ड विल बी इन डेसिमल प्लेसेस. यस, दैट्स करेक्ट. इसके बाद एल्गोरिथम लिखना है, बट वी आर नॉट प्रोसीडिंग विद इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर स्पेसिमेन पेपर्स, जो मैं क्लास में करा चुका हूँ आप लोगों को, ए और बी. दोबारा करा दूंगा अगली क्लास में स्पेसिमेन पेपर. तो पहले वो करना फिर इनके ऊपर आना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम सेंडिंग यू दिस पेपर. प्रैक्टिस दिस, स्टडी ऑल ऑफ दीज पेपर्स एज मच एज यू कैन. प्रैक्टिस ईयरली. बल्कि बुक्स तो मैंने दे ही दी हैं क्लासेस में आप लोगों को, उनके अंदर बेटा प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके चेक कराओ एंड गेट अ गुड ग्रेड. ठीक है. इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में. टेक केयर. खुदा हाफिज. किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं.